Hello everyone, good morning all of you. How was everyone doing? I hope you all are doing well. So student, today we are going to start new lesson which is lesson number 14, chemical effect of electric current. Yes, so student, topic is that first I would like to introduce topic that we will cover in this lesson. Okay, so student, first topic is that do liquid conduct electricity? Okay, so this is the questions. So we find this answer of this question in this lesson. Okay, then second topic is that chemical effect of electric current, and third topic is that electroplating. Okay, so student, let's see the first topic. Do liquid conduct chemical effect of electric current. Your elders might have cautioned you against touching an electrical appliance with the wet hand. But do you know why it is dangerous to touch the electrical appliance with the wet hand? So स्टूडेंट हमारे जो बड़े हैं हमें गिले हाथों से हमें इलेक्ट्रिक चीज़ों को हाथ नहीं पकड़ने देते. यस, ये पर क्यों जो वेट मतलब गिले हाथ से क्यों इलेक्ट्रिक चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए? सो वी हैव लर्न अर्लियर दैट द मटेरियल विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो स्टूडेंट हम लोग ने पढ़े थे कि ऐसे मेटल्स या मटेरियल्स जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होने देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर. ऑन द अदर हैंड द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और जो इजीली पास नहीं होने देते उसे हम कहते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यस, सो इन क्लास 6 वी मेड अ टेस्टर टू रेस्ट वेदर द पर्टिकुलर मटेरियल अलाउड द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू it or not. So do you recall how tester helps us to deciding that? We found that metals such as copper and aluminum conduct electricity, whereas material such as rubber, plastic, wood do not conduct electricity. However, so far we have used to our tester to test material which were in solid state, but वॉट अबाउट लिक्विड? डू यू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? लेट अस फाइंड आउट. सो स्टूडेंट हम लोग ने पढ़े थे कि क्लास 6 में कि कैसे टेस्टर बनाते हैं और टेस्टर के यूज़ से हम बता सकते हैं कि किस मटेरियल में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है या नहीं हो रही है. ओके, सो अभी हम इस चैप्टर में किसके बारे में स्टडी करेंगे कि लिक्विड्स, क्या लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? सो लेट्स सी. सो do liquid conduct electricity? To test whether the liquid allow electric current to pass through it or not, we can use same tester. ये देखो यहाँ पे, ये देखो यूज़ किया है. देखो गुड कंडक्टर ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लाइट ग्लो हो रहा है. ये पुअर कंडक्टर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो लाइट ग्लो नहीं हो रहा है. ओके, तो ये क्या है? और टेस्टर. However, replace the cell by a battery. Also, before using the tester, we should check whether it is working or not. So, activity 14.1. Join the free ends of the tester together for a moment. This complete the circuit of the tester and the bulb should glow. However, if the bulb does not glow, it means that a tester is not working. And can you think of the possible reasons? It is possible that, so student, ये activity है जो आप लोगों को पढ़ना है. Now that our tester is working, let it use to test the various liquid. अभी देखो टेस्टर बनाया गया है, ठीक है. उसके बाद में हम टेस्टर का यूज़ देखते हैं. क्वेश्चंस क्या लेना है इसमें? while checking your tester, do not join its free ends for more than a few seconds. तो आपको few seconds के अलावा दोनों इनको ज्वाइन नहीं करना है. अदरवाइज द सेल्स ऑफ द बैटरी विल ड्रेन वेरी क्विकली. नहीं तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर का जो सेल है वो ड्रेन हो सकता है. Then activity 14.2. Collect a few small plastic or rubber caps or discard bottles and clean them. Pour a teaspoon lemon juice vinegar. सो स्टूडेंट देखो इस प्रकार आप लोगों को एक्टिविटी करना है. लेमन जूस लेना है और देखो यहाँ पे ऐसे स्विच लगाना है. तो इससे आपको क्या होगा? व्हेन लिक्विड्स बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द टेस्टर अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द सर्किट ऑफ द टेस्टर बिकम कंप्लीट. जब लिक्विड यहाँ पे हम रखेंगे तो क्या होगा? लिक्विड रखने की वजह से उसके जो दोनों एंड है वो टेस्टर के जो दोनों एंड है वो अलाउ करेगी इलेक्ट्रिक करंट को पास होने से, और जिसके वजह से जो है सर्किट जो है वो टेस्टर बन जाएगी. ठीक है. द करंट फ्लो इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लोज. व्हेन द लिक्विड डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द सर्किट ऑफ द टेस्टर इज़ नॉट कम्प्लीट एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो. तो अगर करंट इससे पास नहीं होगा तो इसका मतलब जो है तो वो टेस्टर क्या है, मतलब जो सर्किट है टेस्टर सर्किट इज़ नॉट कम्प्लीट. देन इन सम सिचुएशन व्हेन थ्रू द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट
ग्लो इट मे हैपन इन एक्टिविटी 14.2, इसमें देखे थे हमने 14.2 में देखिए. देन in some situation even through the liquid is conducting the bulb may not glow. It may happen in activity 14.2. What can be reason? इसके reason क्या है? Do you remember why the bulb glow when the electric current pass through it? Due to heating effect of the current, the filament of the bulb gets heated to high temperature and it's started glowing. However, if the current through a circuit is too weak and the filament does not get heated sufficiently and it does not glow. And why is the current in the circuit weak? Well, through the material may conduct electricity, it may not conduct it as easily as a metal. As a result, the circuit of the tester may be complete and yet the current through it may be too weak to make the bulb glow. Can we make another tester which can detect the weak current? तो अभी नया टेस्टर बनाने के लिए देखो जो वीक करंट को भी मेज़र करे. Can you use another effect of an electric current to make another kinds of tester? Do you recall the electric current produce a magnetic effect? What happened to a compass needle to keep nearby when the current flow in a wire? Even if current small, the reflection of the magnetic needle can be seen. Yes, हम लोग ने देखे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को अगर इलेक्ट्रिक करंट के बाद अगर साइड में रखते तो क्या होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो है मैग्नेट क्या होता है, डिफ्लैक्ट होता है. यस, उसकी जो नीडल रहती है वो डिफ्लैक्शन दिखाती है. Can we make tester using the magnetic current? Let us find out in activity 14.3. So student यहाँ पे देखो इसे हम लीड्स के, ये क्या है लीड्स, जिसमें देखो यहाँ पे क्या करना है, यू मे यूज़ लीड इन प्लेस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इन द टेस्टर. लीड ग्लो इवन व्हेन द वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द ईट. तो ये लीड कब ग्लो होंगे, जब वीक इलेक्ट्रिक करंट इनसे पास होंगे. देर आर टू वायर्स called leads attached to the lead. One lead is slightly longer than the other. Remember, while connecting to circuit, the longer lead is always connected to the positive terminal of the battery and the shorted lead is connected to the negative terminal of the battery. तो शॉर्ट वाली नेगेटिव में करना है और लॉन्ग वाली पॉजिटिव में करना है. ओके, देन हियर इज एक्टिविटी अनदर टेस्टर. सो ये मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके देखो यहाँ पे बनाया गया है. देन हियर इज टेबल गुड एंड पुअर कंडक्टर ऑफ लिक्विड्स. तो आप हमें क्या करना है इस एक्टिविटी में, लिक्विड्स का अलग अलग लिक्विड्स का यूज़ करना है. देखो इसके लेमन्स हो तो क्या होगा, कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी कि नहीं करेंगी, यहाँ पे आपको राइट करना है. उसके बाद में अगर वो यस है, अगर डिफ्लेक्शन कर रही है इसका मतलब क्या है, वो गुड कंडक्टर है. उसके बाद में विनेगर लिक्विड का यूज़ करना है. ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे हमें ये दोनों एंड को जो है विनेगर लिक्विड में रखना पड़ेगा. तो क्या होगा, नीडल जो है डिफ्लेक्शन दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी, तो इस प्रकार आपको यस नो वहाँ पे राइट करना है. ओके, actually under certain condition most material can conduct. That is why it's preferable to classify the material as a good conductor and poor conductor instead of classifying by as a good conductor एंड इंसुलेटर. सो स्टूडेंट ये इनका यूज़ करके हम पता सकते हैं कि कौन से लिक्विड में जो है बल्ब ग्लो होगा और नहीं होगा. उससे हम क्या कर सकते हैं, गुड कंडक्टर और इंसुलेटर राइट कर सकते हैं. ओके, व्हेन सॉल्ट इज डिजॉल्व इन अ डिस्टिल्ड वाटर द ऑब्टेन सॉल्ट सॉल्यूशन दिस इज़ द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो क्या होगा, जब सॉल्ट को हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो उससे जो सॉल्यूशन मिलता है तो वो क्या है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम द रिसोर्स सच एज टैप्स, हैंड पम्प्स, वेल्स एंड पॉन्ड्स, इट्स नॉट प्योर. इट मे कंटेन several salt dissolved in it. Small amount of material salt naturally present in it. This water is this good conductor of the electricity. On the other hand, distilled water is a free salt and it's poor conductor. So student, जो हम लोग कुएं से, हमको नल से जो पानी मिलता है बोरिंग से, तो उसमें क्या रहता है, सॉल्ट रहता है. इसकी वजह से वो जो वाटर है तो वो गुड कंडक्टर है. और जैसे कि जो वाटर है, जैसे कि हम डिस्टिल्स वाटर लेते हैं, प्यूरीफाई वाला वाटर, तो उसमें सॉल्ट कंटेंट नहीं रहता है. इसका मतलब क्या है, वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यस, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट इन नेचुरली सॉल्ट in water are beneficial for human health. However, the salt make water a good conductor, so we should never handle electrical appliance with wet hands or while standing on a wet floor. तो इसीलिए हम जो है गीले हाथ से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चीज़ों को हाथ नहीं लगाते हैं ना, क्योंकि जो सॉल्ट उसके अंदर जो सॉल्ट प्रेजेंट रहता है तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, करंट लग सकता है.
We have found that the common salt then dissolved in distilled water makes it good conductor. What are the other substances which when dissolved in distilled water make it conducting? Let us find out. सो स्टूडेंट यहाँ पे देखो, और ये जो एक्टिविटी दी हुई है ओके दूसरी मोस्ट अदर लिक्विड का यूज़ करके. देन सेकेंड topic is that chemical effect of an electric current. So student, this topic will continue in the next video. So till then, bye.